Good morning, students. This is part 4 of the chapter Theory of Supply. In this video, we are going to learn about change in quantity supplied and change in supply. First, we are going to learn about change in quantity supply. Change in quantity supply means, beta, when the supply changes due to price only, we call it as change in quantity supply. और इसको और क्या कहते हैं बेटा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. इट मीन्स जब सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, वी कॉल इट एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. It may be of two types, namely expansion in supply and contraction in supply. Movement along the supply curve या हम कह सकते हैं change in quantity supply, उसमें दो cases आते हैं. First one, expansion in supply, जब supply increase हो रही है क्योंकि price increase हो रहा है. And second one is contraction in supply. It means supply decrease हो रही है क्योंकि price decrease हो रहा है. ठीक है. नाउ एक्सपेंशन इन सप्लाई. एक्सपेंशन इन सप्लाई को हम और क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. एक्सपेंशन इन सप्लाई को हम और क्या बोलेंगे बेटा? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व. अपवर्ड मूवमेंट क्यों बोलेंगे? अभी हम आपको ग्राफ शो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. देन यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है सब क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही थी. ठीक है. नाउ इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई विच स्टेट्स दैट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक्सपेंशन इन सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी. The rise in quantity supplied due to rise in the price, it is known as expansion in supply. जब quantity supply increase हो रहा है because of rise in the price, price की rise की होने की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? Expansion in supply. Now, the help of the graph, we can see here that when the price is OP, the quantity supplied is OQ. When the price rises from OP to OP1, in the same supply curve, that is SS the supply curve, the quantity supplied will change to OQ1. It means बेटा आप क्या कर रहे हो? सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हो as movement along the supply curve. From the schedule also, that is the table, we can see it. When the price is 1, supply 5 है. When the price is 2, the supply is 10. When the price increases to 3, supply also increases. अब इसी चीज को हम रीड करें. आई होप आप लोग को समझ में आया है. In the given diagram, price is measured on vertical axis, whereas quantity supplied is measured on horizontal axis. It means OX axis is an horizontal axis and OY axis is vertical axis. A producer is supplying OQ quantity at OP price. जब OP price था तो OQ quantity थी. But due to rise in the price from OP to OP1, जब price rise हो गया OP से OP1 में आ गया, quantity supplied increases from OQ to OQ1. Quantity supply भी increase हो गई, OQ से OQ1 हो गई, which is known as expansion in supply. I hope it is clear. Now, contraction in supply. Contraction in supply को बेटा decrease in quantity supplied बोलते हैं और downward movement along the supply curve बोलेंगे. In this case, it is also based on law of supply. Quantity supply decrease हो जाएगी जब price fall होगा. ठीक है. It is based on law of supply which states that quantity supplied of a commodity falls to the fall in the price of the commodity. The fall in the quantity supplied due to fall in the price of the commodity. जब quantity supply कम हो रही है किसकी वजह से? It is only because of fall in the price कि price कम हो रहा है. It is known as
कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और इसको हम और क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। नाउ in this also graph and schedule is given. In this, OX axis is quantity supplied and OY is the price. SS is the supply curve. OP is the price, quantity supplied is OQ. When the price decreases, OP से बेटा OP1 आया, क्वांटिटी सप्लाइड भी हमको क्या दिख रहा है? OQ1 हो गया। मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट इज वाई डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। अब अगर हम टेबल देखें या शेड्यूल देखें, उसके हिसाब से भी जब प्राइस 3 था, सप्लाई 15 थी, प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई, 10 हो गई। ठीक है। नाउ वी कैन रीड इट फ्रॉम हियर। इन द गिवन डायग्राम, quantity supplied is measured on horizontal axis and price is measured on vertical axis. A producer is supplying OQ quantity at OP price, but due to fall in the price from OP to OP1, the quantity supplied fall from OQ to OQ1, which is called contraction in supply. जिसको क्या कहते हैं बेटा? Contraction in supply. I hope all these things are clear to all of you. Now, shift in the supply curve और change in supply. अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? Change in quantity supply. यहाँ पे क्या word use हो रहा है? Change in supply. Because when the supply changes due to other factors, not because of price. जब supply में changes हो रहे हैं other factors की वजह से, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के रिलेटेड नहीं, तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. आई होप इट इज क्लियर. इफ द सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, देन इट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स. ये भी 2 टाइप्स के हैं बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है. वहाँ पे जब प्राइस की वजह से चेंजेस हो रहे थे तब हम उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे. व्हेन द सप्लाई चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, उसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई and increase in supply means that the producers now supply more at a given level of price of a commodity. It means same price पे अब प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर रहा है. ठीक. ऐसा क्यों हुआ? What are the reasons behind that? Its conditions are fall in the price of remuneration of factors of production. मतलब factors of production के cost कम हो गया. फॉल इन द प्राइस ऑफ द अदर कॉमोडिटीज, रिलेटेड कॉमोडिटीज के प्राइसेस कम होने लगे तो वो उसको सेल नहीं करेंगे. टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया. टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की फॉल हो गई. और चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, वो चेंज हो गया. तो इन दैट केस सेम प्राइस में ज़्यादा गुड सप्लाई कर पाएगा प्रोड्यूसर. I hope it is clear. Now, with the help of the diagram and the table, we can see it here that when the price is 2, the supply is 20 in the table if we are seeing it here, and when the price remains the same, that is 2, supply increases. It means when the here there is a change in the supply but not due to price. यहाँ पे सप्लाई में चेंज हुआ है बट प्राइस की वजह से नहीं हुआ. ठीक है बेटा. तो ग्राफ अगर हम देखें, ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड है एंड ओ वाई में प्राइस है, और ओ पी प्राइस पे ओ क्यू क्वान्टिटी है. सेम प्राइस है पर क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज हो रही है. ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं ओ क्यू 1, इट मीन्स एस एस कर्व शिफ्ट हो गया S1 कर्व में. ठीक है. दैट इज द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम SS टू S1. कैसे सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ? राइटवर्ड, आपके राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है. नाउ वी कैन रीड इट.
In the given diagram, price is measured on vertical axis, whereas quantity supplied is measured on horizontal axis. A producer is supplying OQ quantity at OP price. हमने क्या किया यहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस में हमने प्राइस मेजर किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड, और प्रोड्यूसर ओपी प्राइस में ओक्यू क्वांटिटी दे रहा है. ठीक है. बट ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अदर फैक्टर्स, सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड. दैट इज SS से S1 में हो रहा है. With the rightward shift in the supply curve from SS to S1, the quantity supplied rises from OQ to OQ1. Quantity supplied देखो increase हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, which is known as increase in supply. Now decrease in supply. A decrease in supply means that the producers now supply less at a given level of price of a commodity. मतलब सेम प्राइस चल रहा था बट प्रोड्यूसर अब कम सप्लाई कर रहा है. यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हुई है बट प्राइस की वजह से नहीं. बट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, क्या कॉज हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है बेटा. राइज इन द प्राइस ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया हो. राइज इन द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के प्राइसेस बढ़ गए हों. When the technology becomes outdated, जब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज़ कर रहे हो, या टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट राइज कर गई हो, या प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए हो, तो इन केसेस पे सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर की सप्लाई डिक्रीज हो सकती है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ एंड द टेबल. व्हेन द प्राइस, फर्स्ट वी विल सी द टेबल बेटा. When the price is 2, the supply is 40, the same price 2 is there, but supply क्या हो गई बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो गई, 20 हो गई. ठीक है. यहाँ पे सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस की वजह से नहीं आ रहे. तो अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे OX एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाइड है, OY में प्राइस है, SS आपका सप्लाई कर्व है. सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड OQ से OQ1 आ गई, तो आपका जो सप्लाई कर्व है SS वो शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड S1 पे, और क्वांटिटी सप्लाई हमको कितनी शो हो रही है, OQ1. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्रीज इन सप्लाई. नाउ लेट्स रीड. इन द गिवन डायग्राम, क्वांटिटी सप्लाइड इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, whereas price is measured on vertical axis. A producer is supplying OQ quantity at OP price. But due to changes in the factors other than price, the supply curve shifts leftward from SS to S1. With the leftward shift in the supply curve from SS to S1, the quantity supplied falls from OQ to OQ1, which is known as decrease in supply. I hope all these things are clear to you, all of you. Thank you, students.